السلام علیکم. وقت کافی ہو گیا ہے میرے خیال سے. میں بہت مختصراً اپنی بات آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا، اور جتنے سوالات ابھی تک آئے ہیں اور جتنے خدشات آپ لوگ کے سامنے آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے میں تھوڑا اپنی گفتگو کا رخ تھوڑا موڑنا چاہوں گا. جس تیاری سے میں آیا تھا اس کے لیے تو اتنا وقت نہیں ہے، اور جو پروسیجرل جو باتیں تھی، رجسٹریشن وغیرہ کی، ڈاکومنٹس وغیرہ کی، وہ اخلاق صاحب نے کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں، تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کرتے ہوئے اس کا بھی وقت انشاءاللہ بتایا جائے گا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. مطلب تھوڑا تھوڑا کام سب والا آتا ہے، اور ایک کوئی کام جو ہے وہ مکمل نہیں آتا. تھوڑا تھوڑا بزنس جو ہے وہ سب طریقے کا آتا ہے، لیکن ایک میں مکمل دسترس اور مہارت جو ہے وہ لوگوں کو حاصل نہیں. تو ہمارے شہر میں اور بالخصوص مسلمانوں میں یہ سارے مسائل کا انبار کیوں لگتے جا رہا ہے؟ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں اور جن سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ جیک آف آل ٹریڈس ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی تھوڑی معلومات سب کی رہتی ہے، مکمل معلومات ایک کی نہیں رہتی. تو کام بڑھنے کی وجہ یہ ہے. ایک ایجنٹ جو ایک کام شروع کرتا ہے، میں اس کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس کہاوت کا مفہوم کیا ہے. سارے لوگ کو گاڑی میں جیک لگا کر اٹھانے گاڑی کو آتا ہے، لیکن گاڑی درست مکمل کرنے کا کام وہ کسی کو نہیں آتا. تو اپنے شہر میں جہاں کوئی ایک جیک لگا کے گاڑی اٹھایا تو سارے اپنی بگڑی گاڑی لے کے اس جیک والے کے پاس پہنچ جاتے. تو دقت یہ، تو وفاق المدارس کا جو یہ تنظیمی ڈھانچہ شروع ہوا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو یکجا کیا ہے، اور یہاں سے کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کو صحیح رہنمائی، ایکسپرٹ رہنمائی ملے، اور صرف وہ چھوٹے موٹے مسائل کی درستگی کے لیے آپ کی اس طرح رہنمائی نہیں کی جائے، بلکہ شروع سے آخر تک آپ لوگوں کی ہر قدم پر ایسی رہنمائی کی جائے جس سے آپ کا مکمل تحفظ ہو، مساجد کا، مدارس کا اور مکاتب کا بالخصوص. ان سارے تحفظات کے لیے وفاق المدارس نے جو یہ تنظیم قائم کی ہے، اسے میرے خیال سے بہت سسٹمیٹیکلی اور مکمل طور سے آپ لوگوں کی رہنمائی کا نظم کیا جا رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے اور آپ کے ذریعے سے، اس تنظیم کے ذریعے سے پورے شہر سے یہ درخواست ہے کہ آپ جب اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے ایک تنظیم قائم ہے تو اب سارے کام اور سارے مسائل کا حل ایک طرح سے یہیں سے کام آپ کروائیں اور یہیں سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ ساری چیزوں میں یکسانیت رہے. دوسری اہم بات، کسی بھی ایجنٹ یا کسی بھی معلومات رکھنے والے شخص اور حتیٰ کہ افسران کی بھی ہدایت پر کیا گیا کام وہ قانونی نہیں ہوتا، وہ غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی چیز، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اگزامپل کے طور پر مدارس پر کوئی چیلنج آتا ہے، تو یہ قانونی طور پر آخر میں عدالت یا ٹرائبونل طے کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ کوئی افسر طے نہیں کرے گا، یہ کوئی ایجنٹ طے نہیں کرے گا. تو ہمارے یہاں دقت جو میں نے آپ کو پہلے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ سارے لوگ بنا صحیح جانکاری اور رہنمائی حاصل کیے لائن لگا کر وہ کام اسی نہج پر کرتے چلے جاتے. اب یہاں پر سب سے بڑی جو تشویش کا سبب مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ وقف، سوسائٹی یا ٹرسٹ، یہ تین ایکٹ میں کدھر جانا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں اس میں تو یہ ہے، اس میں تو وہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے.
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں وقف ایکٹ میں ہی رہنا چاہیے صاف طور پر. نہ سوسائٹیز میں جانا چاہیے، نہ ٹرسٹ میں جانا چاہیے. میں اس پریشانی کو سمجھ رہا ہوں کہ مکاتب جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں لاوارث ہیں. ہر وقت جو ہے وہ مساجد و مدارس پہ ہی بات چلتی ہے. مکاتب بہت حد تک جو ہے وہ لاوارث سمجھے جاتے ہیں کہ اب وہ کہاں جائیں، کس سے کس طرح سے ضم ہو. تو یہ میری جو رائے ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ میں آپ کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں جانا چاہیے اور کیوں نہیں جانا چاہیے. انڈین پبلک ٹرسٹ ایکٹ جو بنا ہے وہ 1950 میں بنا ہے، اور سوسائٹیز رجسٹریشن آف سوسائٹیز ایکٹ جو ہے وہ قانون 1860 میں بنا ہے. 18ویں صدی میں سوسائٹی کا ایکٹ بنا ہے، 1950 میں ٹرسٹ ایکٹ بنا ہے. وقف ایکٹ جو پہلے بنا تھا وہ 1923 میں بنا تھا. 1923 مطلب آزادی سے پہلے، جب سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ بھی موجود تھا. اس کے بعد وقف میں نیا قانون آزادی کے بعد جو بنا وہ 1955 میں 1955 میں بنا آزاد ہندوستان میں. وہ ایکٹ جو ہے پھر آگے جا کے اس میں ترمیم ہوئی اور نیا ایکٹ جب بنا وہ 1995 میں بنا. 1995 کے بعد وقف ایکٹ 2013 میں امینڈمنٹ ہوا، اور 2013 کے بعد ابھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024-25 میں یہ نیا قانون آیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وقف ایکٹ 1923 سے موجود ہے، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 سے موجود ہے، اور انڈین پبلک ٹرسٹ ایکٹ 1950 سے موجود ہے. تو جب تینوں ایکٹ اتنے لمبے وقفے سے موجود ہیں تو ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابرین کو، قانونی ماہرین کو یہ عقل اس وقت نہیں آئی تھی کہ ہم کو وقف میں نہیں جانا ہے بلکہ سوسائٹیز اور رجسٹریشن ٹرسٹ میں بھی جا سکتے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی اس کی. تو آج یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کو سوسائٹیز میں جانا ہے کہ ٹرسٹ میں جانا ہے کہ وقف میں جانا ہے؟ اس کی میں دوسری وجہ بتاتا ہوں کہ سوسائٹیز ایکٹ اور وقف ٹرسٹ ایکٹ، یہ دونوں قوانین جو ہیں یہ کامن لا ہے، جنہیں عام زبان میں سیکولر لا کہہ سکتے ہیں. سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ اور پبلک ٹرسٹ ایکٹ یہ سارے مذاہب کے لیے عام ہیں، یہ کوئی مخصوص قوانین نہیں. اس میں مسلمان بھی جا سکتا ہے سوسائٹیز اور ٹرسٹ میں، ہندو بھی جا سکتا ہے، سکھ بھی جا سکتا ہے، عیسائی بھی جا سکتا ہے. اسی طرح سوسائٹیز ایکٹ میں بھی سارے مذاہب کے لوگ بلا تفریق مذہب اس میں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. لیکن وقف ایکٹ جو ہے وہ اسپیشل ایکٹ ہے، اور اسپیشل ایکٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل ایکٹ کو جنرل ایکٹ پہ ہمیشہ فوقیت حاصل ہوتی ہے. اگر اسپیشل ایکٹ اور جنرل ایکٹ کا ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ مانا جو جائے گا وہ اسپیشل ایکٹ مانا جائے گا. یہ اس کی دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت مسائل کے حل کے لیے جو تدابیر کرنی چاہیے وہ دور اندیشی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. صرف سرسری اور کتابی حوالوں سے قوانین کے جو الفاظ لکھے ہیں ان کے مطابق نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹیز اور ٹرسٹ کا جو قانون ہے یہ کامن لا ہے، عام قانون. تو کیا آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ یہ قانون میں گورنمنٹ کبھی کسی بھی طرح کا رد و بدل نہیں کرے گی؟ آج کی جو تاریخ میں جو قانون موجود ہے وہی قانون چلے گا، کوئی ریپیل نہیں کرے گی؟ وہ تو کبھی بھی کر سکتی ہے. تو یہ دوسری بات یہ کہ امینڈمنٹ کا جو پروویژن ہے وہ گورنمنٹ کبھی بھی استعمال کر سکتی ہے. چوتھی وجہ یہ کہ میں آپ کو کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیوں لایا گیا ہے، ہر قانون جب بل آتا ہے
तो उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस दिया होता है कि इस कानून की जरूरत क्यों पेश आई और इसे क्यों लाया जा रहा है। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट सिर्फ इसलिए लाया गया था, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि फॉर बेटर पोजीशन ऑफ लीगल कंडीशंस ऑफ सोसाइटीज, उनकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो सोसाइटीज मौजूद थी, उनकी कानूनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। मैं आपको सिर्फ मफहूम बता रहा हूं। तो सिर्फ इस पर्पस के लिए सोसाइटीज एक्ट आया। फिर उसके बाद जब ट्रस्ट एक्ट आया तो तब उसमें पहली बार ट्रस्ट लफ्ज का इस्तेमाल किया गया और उसमें रिलीजियस ट्रस्ट को भी शामिल किया गया, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। तो ये उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सोसाइटीज में सिर्फ उनकी लीगल पोजीशन को बेटर करना था। ट्रस्ट एक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आया कि उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट का मकसद उसमें शामिल किया गया कि ट्रस्ट एक्ट इसलिए लाया जा रहा है कि जो ट्रस्ट बनी हुई है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह हो, उसका गवर्नेंस किस तरह हो। यहां पर वक्फ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस उसकी कमेटी के हाथ में होता है। ट्रस्ट में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली किसी सरकारी अफसर के हाथ में होता है और वो उसमें मुदाखलत का भी इख्तियार रखता है। उसकी तहलील होने की सूरत में इसमें बहुत सारी कंडीशंस के उसके क्या क्या होगा। उसके बाद पांचवी वजह और सबसे बुनियादी वजह जिसकी वजह से मेरा ये ओपिनियन है कि वक्फ में ही रहना चाहिए, सोसाइटीज और ट्रस्ट में नहीं जाना चाहिए। वक्फ की डेफिनेशन क्या है? वक्फ की डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज, मिल्कियत, जमीन, जो भी प्रॉपर्टी हो, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए अब वो चीज वक्फ हो गई और वो चीज अल्लाह की मिल्कियत में चली गई। और वक्फ एक्ट लाने का उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी यही लिखा हुआ है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो शरई तौर पर जो वक्फ की डेफिनेशन है उसका तहफ्फुज़ सिर्फ आपको वक्फ एक्ट दे सकता है। सोसाइटीज एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि वो प्रॉपर्टी अब परमानेंटली प्रोटेक्शन में रह सकती है, क्योंकि वो आपका मजहबी तहफ्फुज़ का कानून नहीं। ट्रस्ट एक्ट भी आपके इस कॉन्सेप्ट की हिफाजत नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेश के लिए अल्लाह की मिल्कियत में चली गई, क्योंकि वो कॉमन लॉ है, वो कभी भी चेंज किया जा सकता है। छठी वजह यह है कि सोसाइटीज और ट्रस्ट में प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से बेची जा सकती है और उसका नेचर चेंज किया जा सकता है। आप नहीं चेंज करना चाहते, चैरिटी कमिश्नर के हुक्म पे चेंज किया जा सकता है। सोसाइटीज में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रार के जरिए वो चीजें चेंज की जा सकती हैं। तो ये ऊपर ऊपर की बहुत बुनियादी बातें हैं कि ये क्यों वक्फ में रहना चाहिए। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि आपको मुल्क के हालात का और मुस्तकबिल का अंदाजा इस वक्त रहना चाहिए कि कहते हैं ना कि अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो क्या करे, उसकी शनाख्त मिटाते जाए। उसकी शनाख्त मिटा दे, कौम खुद ब खुद मिट जाएगी। तो अगर आप बतदरीज देखेंगे तो शरई अहकामात में जो दखल अंदाजी हो रही है, मुदाखलत हो रही है, ट्रिपल तलाक की बात कर लें, फिर ये वक्फ की बात कर लें, तो ये जो आइडेंटिटी को डैमेज करना है तो इसी का तहफ्फुज़ सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मुखालफत में जो इक़दाम किए थे, उसका मकसद भी यही था कि हमारी शनाख्त को बचाया जाए। तो इन सारी बातों के या तो हमारी शनाख्त के बारे में मैं ये बता रहा था कि हमारी शनाख्त हिंदुस्तान में हमको और आपको मुसलमान रहने का हक किसने दिया? आपको किसने हक दिया है कि आप जो है यहाँ पे मदारिस चलाएं, मसाजिद बनाएं, मकातिब चलाएं? यह आपको हक किसने दिया है? तो ये हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, ये हुकूमत नहीं देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर के आर्टिकल 25, 25, 26 और
बहुत बिलखुसूस 29 और 30, 29 और 30, 29 आपको मजहबी तालीमात की आज़ादी देता है, 25 आपको मजहबी शनाख्त की, अपनी इबादत की आज़ादी फराहम करता है। तो दस्तूर हमको शनाख्त फराहम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। जबकि एक्ट्स को अमेंड करना, उसको रिपील करना और खत्म करना, बिलखुसूस कॉमन लॉस को जो सोशल है, सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इनको किसी भी वक्त खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो अपनी तशखीस, अपनी शनाख्त को भी बाकी रखना, और जब एक कानून बिलखुसूस उसी मकसद के लिए कायम किया गया है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हासिल है, सबसे ज्यादा आपके लिए प्रोसीजर दिए हुए हैं, तो फिर आप उसको छोड़ के कॉमन लोगों में फालतू की बाजार में घुसने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। तो इसके लिए भी वक्फ में रहना जो है वो ज्यादा मुनासिब। अभी ये जो चीजें शुरू है कि नया एक्ट आया है, उसके ताल्लुक से रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी तफसील का तो वक्त नहीं है, लेकिन जब भी ये काम होगा तो मेरा मशवरा तो ये है कि वफाकुल मदारिस के जरिए ही तमाम लोगों को जमा करके एक प्लेटफॉर्म से उस काम को अंजाम दिया जाए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो अभी उम्मीद पोर्टल का भी सवाल आया था कि उम्मीद पोर्टल जो है वो अभी नए कानून में बना है। तो जैसा कि मौलाना उमरैन साहब ने भी बताया कि ये सिस्टम पहले मौजूद था और ये सिर्फ इस वक्त बदमाशी है, और नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हुए जो कानून अभी अंडर चैलेंज है उसके तहत कोई पोर्टल बनाकर उस पर काम शुरू करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। लेकिन इस हुकूमत का भी ये पैटर्न रहा हुआ है कि कोई भी मामला अदालत में पेंडिंग भी हो तो उसमें वो इतना काम करने की कोशिश करते हैं कि बाद में जब वो चीज हियरिंग के लिए आती है तो तब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये होता है, कानूनी तौर पर उनके पास डिफेंस नहीं होता, तो वो इस मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं कि नहीं, उस चीज के चलते अब हमारा इतना ज्यादा काम हो चुका है कि अब हमारा मालियात का इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे डेटा का इतना नुकसान हो जाएगा। मैं अजम्पशन के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये अगर उम्मीद पोर्टल पे सारी एंट्रीज हो गई और करते गए, तो जब समाज का वक्त होगा, जैसे कि उम्मीद पोर्टल को भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमने उम्मीद पोर्टल को कायम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसमें लोगों को और अफराद को तकर्रुरी में इतना खर्चा कर दिया, तो अब उस चीज का सारा नजरिया जो है वो बदल जाता है। और ये बात हमको पता होनी चाहिए कि ये उम्मीद पोर्टल कोई नई बला का नाम नहीं। इससे पहले जो है ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू से मौजूद है, वामसी के नाम से, WAMSI। 2020-21 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के चीफ सेक्रेटरी ने हल्फिया एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड रिप्लाई में ये बात सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी कि 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे इंडिया में टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज का 90% रजिस्ट्रेशन पहले से ऑलरेडी वामसी में किया जा चुका है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो जब 90% औकाफ का रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो फिर क्या वजह है कि आपको जीरो से फिर से शुरू करना है? तो ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को पेचीदा बनाना, आपकी शनाख्त को खत्म करना और ये वक्फ के जरिए से आपको नुकसान पहुंचाना, ये इनके मकासद में हो सकता है। लेकिन अभी जो चीज है उसको डील करना है, जैसी है वैसी है, ये बहुत जरूरी है। दूसरे एक अहम बात ये सामने आई कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक, अब इसमें आप ये बात समझ ले, आप मसाजिद, मदारिस और मकातिब, क्या आपकी नमाजें जो है वो वक्फ हैं? कोई नमाज वक्फ करता है क्या? कोई मदारिस की तालीम कोई वक्फ करता है क्या? मकातिब की तालीम कोई वक्फ करता है क्या? आपकी इबादतें बहुत अलग है और वक्फ जो अदारा है ये बहुत अलग है। समझिए, आप मस्जिद जब हम नाम लेते हैं तो हम नमाज और इबादत में चले जाते हैं, मदारिस और मकातिब है तो फिर हम तालीमात में चले जाते हैं। ये आपके वक्फ का बुनियादी पहलू नहीं है।
आपकी वक्फ का बुनियादी पहलू आपकी औकाफ की प्रॉपर्टी और मिल्कियत। वक्फ एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी मस्जिद के नाम से नहीं होता है, भले आप अपनी मस्जिद के और उसकी बॉडी के नाम को लिख लेके मस्जिदों मदरसा फला फला, मकतबों मदरसा फला फला, लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें ये मिलता है कि वक्फ इंस्टीट्यूशन, आपका नाम लिखा रहेगा सो एंड सो एंड सो इज रजिस्टर्ड एज वक्फ अंडर सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट। आपका सिर्फ वक्फ इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर हो रहा है। उसमें दूसरी एक गलत हरकत ये हो जाती है, या कोताही बोलो या मालूमात की कमी बोलो, वक्फ रजिस्टर तब करते हैं कि पहले जमीन खरीद लेते हैं, उस पर मस्जिद की इमारत तामीर कर लेते हैं, मदरसे की इमारत तामीर कर लेते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन किसका कराते हैं? जमीन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो आपकी इमारत का क्या हुआ? आपकी मस्जिद, जमीन आपकी मस्जिद है कि इमारत आपकी मस्जिद है? किसको आपको वक्फ बोलेंगे? तो अगर जमीन है तो फिर आपकी दूसरी परेशानी, जब आप स्ट्रक्चर को शेड्यूल पे डालने जाएंगे तब आपसे सवाल जवाब होएगा कि कारपोरेशन का ये लेकर आओ, 7/12 का ये लेकर आओ, परमिशन लेकर आओ, वो लेकर आओ। फिर जब आप वो लेकर पहुंचेंगे तो आपके सामने नई दिक्कत ये रहेगी कि अब आपका वक्फ का रजिस्ट्रेशन उस तारीख से पकड़ा जाएगा या जिस तारीख से जमीन वक्फ हुई थी उस तारीख से पकड़ा जाएगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जमीन जो है वो 20 साल पहले वक्फ की हुई है, तामीर का इंतजाम अब 20 साल के बाद हुआ है, रजिस्ट्रेशन अब 20 साल के बाद होगा। और बहुत सारी रियासतों में अभी जो पीछे जो एक लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का डेटा जो गवर्नमेंट के जरिए पेश किया गया, उसमें बहुत सारी रियासतों में वक्फ को जो उसकी जो शुमारी की गई कि कितने वक्फ मौजूद हैं, तो उसमें जमीन को एक वक्फ माना गया। एक ही वक्फ की जमीन है, उसमें जमीन को वक्फ 1 काउंट किया गया, उसकी इमारत को नंबर 2 काउंट किया गया, उसके किसी कमरे को, हॉल को या उसके किसी और चीजों को नंबर 3 काउंट किया। तो जितने मौजूद नहीं थे उससे बहुत ज्यादा जो है वो नंबर बताए गए कि इतने इतने वक्फ तो हमारे साथ है और रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन, नए कवानीन में रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए, लेकिन उनकी काउंटिंग इस अंदाज से की गई। तो इन सब चीजों की हमको मालूमात होना बहुत जरूरी है कि वक्फ का आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो। अब आपका वक्फ इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो गया तो आपका वक्फ इंस्टीट्यूट अब वो क्या क्या कर सकता है। वक्फ बोर्ड आपको या गवर्नमेंट या वक्फ एक्ट आपको ये नहीं बताता कि आप नमाज पढ़ेंगे, 5 टाइम की पढ़ेंगे, 6 टाइम की पढ़ेंगे, मदरसा चलाएंगे, इतनी इतनी क्लास का मदरसा चलाएंगे। ना आपको एक्ट बताएगा, ना आपको वक्फ बोर्ड बताएगा, ना वो गवर्न कर सकते उस चीज को। वक्फ एक्ट का मकसद है प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ, वक्फ को तहफ्फुज करना। जैसा कि बाकी लोगों के साथ नहीं है जिसमें ट्रस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन भी, तब आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? उस वक्फ इंस्टीट्यूट का आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब आप वहां क्या क्या कर सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी है आपके पास? तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को छोड़कर तमाम मजहबी तरीके की कानूनी सरगर्मियां करने की आपको वक्फ इंस्टीट्यूट में इजाजत है। अब किन किन कामों को कर सकते हैं उस वक्फ मिल्कियत में, क्योंकि आपकी मिल्कियत रजिस्टर हुई है, आपका मदरसा रजिस्टर नहीं हुआ है वक्फ की तरफ, आपका मकतब बतौर वक्फ रजिस्टर नहीं हुआ है, आपकी मिल्कियत वक्फ के तौर पर रजिस्टर हुई। तब आप वहां पर क्या क्या कर सकते हैं ये आपको बताएगी आपकी वक्फ स्कीम, जो कि हमारे यहाँ पे किसी के पास शाज़ व नादिर ही होती है कि किसी वक्फ अदारे के पास उसकी वक्फ स्कीम। वक्फ स्कीम जो है वो सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है इस पूरे वक्फ इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सरगर्मियां हो सकती है और क्या क्या नहीं कर हो सकती। ये वक्फ इंस्टीट्यूशन जो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। वक्फ इंस्टीट्यूशन इस तरह का हबीब लॉन्च भी बना सकता है, शादी हॉल बना सकता है, कम्युनिटी हॉल बना सकता है, मदरसा भी चला सकता है, मकतब भी चला सकता है, नमाजें भी पढ़ सकता है। लेकिन ये सारी चीजों की इजाजत आपकी स्कीम, आपकी वक्फ डीड अगर है तो, या तो आपकी वक्फ स्कीम इन सारी चीजों पे अहाता करता हो या देता हो। अगर आपकी वक्फ स्कीम है और आपकी वक्फ स्कीम में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ इस वक्फ अदारे में सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ेंगी, तो आपका वहां पे मदरसा चलाना भी गैर कानूनी।
आपका वहां पे मकतब चलाना भी गैर कानूनी। तो आप नजरिए कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। खाली मदरसा चलाना नहीं चलाना सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपकी स्कीम उस अदारे का जो लॉ है, जैसे पूरे मुल्क को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके वक्फ अदारे को चलाने के लिए उस वक्फ अदारे का कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी वक्फ स्कीम, जिन चीजों की इजाजत आपकी वक्फ स्कीम देती है वो सारी एक्टिविटी आप वहां पर कर सकते हैं कानूनी तौर पर। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये वक्फ स्कीम आपकी वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा है। अगर उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो उस वक्फ स्कीम को मंजूर नहीं करते। तो वक्फ स्कीम हर किसी अदारे को, वक्फ अदारे को अपने मामलात की नौयत के हिसाब से बनाना चाहिए और बहुत वसीउन नजरी के साथ बनाना चाहिए। जो काम वो मुस्तकबिल में कर सकते हैं या जो काम की जरूरत और भी पड़ सकती है, आप उसको वक्फ स्कीम में शामिल करिए। वो करना इस वक्त है, कब करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। जब जिस चीज की जरूरत हो तो ये ना हो कि आपको अपनी स्कीम अमेंड करनी पड़े। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। अब रही बात जो है वो खास सवाल के मकातिब का क्या करना चाहिए, उसके कुछ रास्ते हैं। मदारिस तो आप मसाजिद से मरबूत करके मस्जिदों में भी चला सकते हैं, लेकिन मदारिस और मकातिब मैं दोनों के लिए बताता हूँ कि मकातिब को जिस तरह वफाकुल मदारिस और मकातिब जो तंजीम है, एक बॉडी के अंडर में जो है इन सारे लोगों को जमा कर लिया जाए और एक प्लेटफॉर्म से उनको जो है वो चलाया जाए। फिर आप उसके सिर्फ मकातिब के लिए, लेकिन ये मकातिब भी हमारे मजहबी शनाख्त का हिस्सा, मजहबी तालीमात होती है, तो उसको भी अगर एक वक्फ बॉडी की तरह रजिस्टर किया जाए, एक वक्फ इंस्टीट्यूट रजिस्टर किया जाए और उसके मातहत इन सारी चीजों को चलाया जाए, सारे मकातिब को। क्योंकि कोई भी वक्फ अदारा अगर उसकी स्कीम इजाजत देती है तो वो भाड़े करारनामा, लीव एंड लाइसेंस जिसको बोलते हैं, लीज एग्रीमेंट बोलते हैं, वो एज अ बॉडी ये सारे मुआहदात में शामिल हो सकता है। तो अगर कोई वक्फ अदारा है भी तो वो बॉडी किसी के घर में मकतब चल रहा है तो अपना एक लीव एंड लाइसेंस 11 महीने का एग्रीमेंट बना सकती है कि वो जगह हमारे इस मकसद की तकमील के लिए हमने वो जगह का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है एक बॉडी के तहत, एक वक्फ के तहत। लेकिन जैसा कि जो ऑडिट और हिसाब किताब का मामला है, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बताया, अखलाक साहब ने बताया कि ये किसी न किसी एक पेरेंट बॉडी में आना चाहिए और एक अकाउंट में आना चाहिए, एक ऑडिट में आना चाहिए। मल्टीपल ऑडिट्स में भी आ सकती है अगर आप उसको एरिया वाइज डिवाइड करें, जिस तरह भी करना चाहें। लेकिन सबसे बुनियादी जो लाइन है वो ये है कि मदारिस को किसी ना किसी पेरेंट बॉडी के तहफ्फुज़ में आना पड़ेगा, मकातिब को, और वो उसकी नुमाइंदा बॉडी होगी और फिर उसके जेर एहतमाम वो चीजें चलती है। दूसरी एक सूरत ये है कि जिस इलाके की, जो मकतब जिस मस्जिद के मातहत चल रहा है, जिस वक्फ के मातहत चल रहा है, तो उसकी स्कीम में पहले तो मकातिब को स्कीम में भी शामिल किया जाए और फिर उस मस्जिद से उस मकतब को जो है एक सेपरेट बॉडी को स्कीम में भी डाला जाए कि हाँ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऐसे ऐसे मकसद की तकमील के लिए हमारी स्कीम में और इस वक्फ अदारे में ऐसी ऐसी बॉडी भी रहेगी जो मकातिब का इंतजाम देखेगी। तो अगर आपने बॉडी सेपरेट कर दी मकतब की अपनी एक पेरेंट वक्फ अदारे के अंडर में और एक स्कीम के अंडर में, तो वो आपकी एक अलहदा बॉडी बन गई उस वक्फ के जेर एहतमाम। तो आप उस बॉडी का भी फिर बैंक अकाउंट बना सकते हैं, उस बॉडी के जरिए उन चीजों को काम कर सकते हैं, सिर्फ मकातिब का काम। फिर उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो भी रहेगी वो आप जो है वो पेरेंट वक्फ अदारे में जम करके और उसे फिर सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल उसको वर्कआउट किया जा सकता है मकातिब को भी मैनेज करने के लिए। एक और जो बात सामने आई थी कि चीफ ट्रस्टी का किसी ने तस्करा किया था, तो चीफ ट्रस्टी जो है वो किसी कानून में ये नहीं, टर्म जो है वो डिफाइंड नहीं होती है चीफ ट्रस्टी। चीफ ट्रस्टी सिर्फ वो होता है कि जो सारे ट्रस्टी का हेड जो होता है उसको चीफ ट्रस्टी बोला जाता है। ट्रस्टी डिफाइंड है, सारे ट्रस्टी क्या रहेगी, तो चीफ ट्रस्टी कोई अलहदा से वो नहीं होता है। चेंज रिपोर्ट वगैरह भी जो काम अभी निकला हुआ है
वक्फ अदारों का, तो चेंज रिपोर्ट को भी वफाक के ज़ेर एहतमाम मुनज़्ज़म तरीके से अगर करेंगे तो वक्फ के जिम्मेदारान से बात की जा सकती है कि सिर्फ यहाँ पर एक बॉडी जो है वो इतने कई सौ अदारों की चेंज रिपोर्ट का काम जो वो सिर्फ एक अदारे से होता है, तो आप वहां से नुमाइंदा भेजिए फला फला तारीख, तो वो काम जो है वो बआसानी हो सकता है। क्योंकि ऐसे भी मतलब मेरे पास ऐसे भी मामलात आते हैं कि 2-3 लाख रुपया 2 साल से खर्चा कर चुके हैं इधर उधर काम में, लेकिन अभी तक चेंज रिपोर्ट ही मंजूर नहीं हुई। तो ये एक तो रिश्वतखोरी का जो माहौल हर जगह पर है इस काम में, चेंज रिपोर्ट में खास तौर पर एजेंटों का जो कमीशन खोरी का मामला है, इन चीजों को भी बीच से खत्म किया जा सकता है अगर किसी एक जिम्मेदार बॉडी के पास सारे चेंज रिपोर्ट के काम हो और वो कम्युनिकेट करे गवर्नमेंट से, वक्फ अदारे से कि हमारा या तो हमारा नुमाइंदा इतने काम लेकर फला तारीख को आपके पास आएगा, आप मालेगांव शहर का इतना ये दिन तय कर दीजिए, या तो आप अपना नुमाइंदा यहाँ भेजिए जो चेंज रिपोर्ट का काम जो है वो इस तारीख को इतने इतने बल्क में काम किया जाए। तो इससे सारे कमीशन खोरी और ये सब जो है रिश्वत खोरी का मामला भी खत्म होएगा। दूसरे, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है इसके कॉम्प्लायंस में जैसा कि मौलाना उमरान साहब ने बताया कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए गए हैं कि इनकी तकमील जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो गई है, नामुमकिनात के तौर पर समझ लीजिए इसको कि मुमकिन ही नहीं है कि इतने सारे कॉम्प्लायंसेस किए जा सकें। लेकिन अब जो आप किसी भी मकातिब व मदारिस के लिए और वक्फ अदारों के लिए ट्रस्टियान का इंतखाब करें, मुतवल्लियान का इंतखाब करें, तो अभी तक जो है वो हम सिर्फ इस बुनियाद पे करते थे कि हाँ सबसे नमाजी कौन है और सबसे मुत्तकी कौन है। तो अभी इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए कि तालीम याफ्ता कौन कानून की मालूमात रखता है या पढ़ने लिखने का अहल हो, जो हुकूमती गाइडलाइंस को समझ सकता हो और उसके कॉम्प्लायंसेस को भी कर सकता हो, तो ऐसे अफराद को भी बॉडी में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। उसके अलावा शहर में एक और कल्चर है जो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है कि वक्फ में 7/12 के उतारे पे ट्रस्टियान मुतवल्लियान अपने नामों का इंदिराज करवाते, तो अब से ये भी बंद होना चाहिए, नए एक्ट में वो भी नहीं चलेगा। आपको 7/12 में प्रॉपर्टी कार्ड में आपको उस वक्फ अदारे के नाम का इंदिराज कराना है, ना कि ट्रस्टीज। और ये जो है वो आपको हमेशा के लिए फायदा देगा। आपको ट्रस्टियान का अगर नाम डालेंगे, किसी का इंतकाल होता है फिर वो चेंज कराओ, उसके बाद कोई नया आता है, बॉडी चेंज होती है फिर चेंज कराओ, तो ये अब ये परमिसिबल भी नहीं रह गया है। इसलिए जिनके 7/12 के नामों में ट्रस्टियान मुतवल्लियान का नाम है, उनको अब उस अदारे के नाम से ही 7/12 पर भी करेक्शन करवाना होगा, और जो खरीदी वगैरह हो वो भी अदारे के नाम पर ही खरीदी ली जाएगी और ली जानी चाहिए। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब ये सारा निज़ाम, अभी की सूरत हाल ये कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मौजूद है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसको खत्म करती है, नहीं खत्म करती। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि वक्फ बोर्ड के पास पावर नहीं, पावर जो है वो सारी शिफ्ट हो गई है कलेक्टर के पास और उम्मीद पोर्टल पर। अब आपका वक्फ रजिस्ट्रेशन होना भी वक्फ बोर्ड के इख्तियार में नहीं, अब वो वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ इतना इख्तियार रह गया कि वो आपको सर्टिफिकेट जारी करे, लेकिन तब तक नहीं जारी कर सकती जब तक कि उसको कलेक्टर ना एनओसी दे दे। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लेकिन आपको कलेक्टर बताएगा कि आपका वक्फ रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब वो हाँ करेगा तब वक्फ बोर्ड देगा, अदरवाइज वक्फ बोर्ड आपको वो चीज नहीं दे सकता। तो अभी की सूरत हाल ये हो गई है कि हमारा सारा फोकस जो है मकातिब, मदारिस और मसाजिद को लेके अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा क्लियर रखने चाहिए। 7/12 हो गया, महसूल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, यहाँ सारे जितने भी रेवेन्यू अदारे के पास जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनमें औकाफ की एंट्री, उनकी बाउंड्रीज, उनकी प्रॉपर्टीज, हत्ता के एक गिलास, चम्मच, हर चीज का इंदिराज जो है वो महसूल की एंट्री में भी दर्ज कराने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अभी जो यहाँ से जो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे या जो भी मामला सामने आएंगे
उसमें कोर्ट जो है वो सिर्फ भरोसा करेगी आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो कलेक्टर के मातहत आता है यहाँ पे, जो अपने सिविल साइड पे जो चलता है। अब जो वक्फ में आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसकी अहमियत वो नहीं रहेगी जितनी की अहमियत जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की रहेगी। तो इसके लिए आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। एक और अहम बात कि अब यहाँ से या पहले से भी नोटिसेस बहुत सारे वक्फ अदारों को आती है, मुख्तलिफ हेड्स में कुछ कुछ बातों के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से मदारिस मकातिब को या किसी भी वक्फ अदारे को लीगल नोटिस कोई आती होगी, और आइंदा यहाँ से और भी आएगी। तो इन नोटिसेस का जवाब देने का भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, चाहे तो विभाग के जरिए से ही। इसकी वजह यह है कि जब इस तरह के मामलात आएंगे, नोटिस आएगी तो वो कुछ 3-4 तरीके की, 3-4 कलर की हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। तो एक प्लेटफॉर्म से उन नोटिसेस का जवाब किसी माहिर वकील के जरिए दिए जाने से फायदा ये होगा कि जवाब में यकसानियत रहेगी, और यकसानियत की बुनियाद पर जो है वो किसी इंडिविजुअल एक अदारे को कोई कार्रवाई अकेले तौर पर वो लोग ऐसा कोई इकदाम नहीं कर पाएंगे जो आपके खिलाफ है। तो ये एक मजबूती का एक ये भी पहलू है। तो आप जो है वो नोटिसेस वगैरह जो उनकी तरफ से आती है उसको भी डील करने के लिए विभाग के अंडर में काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी के जो कॉम्प्लायंसेस हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एक्ट में, उसके लिए भी सारे अगर नहीं हो सकते तो मैक्सिमम कंप्लायंस, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस करने की कोशिश जो है वो हमको करनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें